किसी का? डीपीएस का किसका था? किसी का नहीं? आज नहीं था। ओके, ठीक। राइट गाइस, क्लास 8, today we are doing SST after a long time, and we are doing history, very interesting chapter. And this chapter number कौन सा भाई? जी हाँ, सर 5। 5, 1857 रिवोल्ट। रिवोल्ट तो एक्चुअली वो बोलते हैं ब्रिटिशर्स, इंडियंस तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। इससे पहले लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन टर्म, बहुत ही हाई लेवल का टर्म पूछा है अर्नव ने, मतलब तुम्हारे हिसाब से हाई लेवल का। इट्स कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स। जियो Okay, guys, be ready. I just want to take your views on this. Don't Google this because मैंने बताया गुड हमारी इवनिंग क्लास सर। के अंदर ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। श्रीका, गुड इवनिंग। जियोपॉलिटिक्स क्या होता है? जियोपॉलिटिक्स क्या होता है? Okay, all those who know about it, write IK after I draw the line. After I send the line, you can tell me what is. सर हमारे स्कूल में इंग्लिश में सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आज मैम ने स्टार्ट करा दिया। Sir, good evening. I'm good, sir. I'm good, sir. All well, sir. अभी I'm in Greater Noida, sir. Sir, okay, sir. मेरे को दे देगा सर? ठीक है सर, that'll be fine sir, no problem sir, मैं कर, no problem sir, no problem. बाकी सब बढ़िया सर। I'll talk to you later sir, I'm in the middle of a class, so मैं I'll talk to you later. Right sir, green sir. Sorry, I had to take this call. This is one senior friend of mine, not friend exactly, he was my senior. He's General Samir Gupta. He's still serving army headquarters में अभी। हाँ जी। Okay, so yes, okay, yeah, I heard what you were saying, half of it. Right. So I just want to know how many people know what is geopolitics. Okay. Nobody. Good Okay. evening, sir. Yeah. Hey, Ritwik Chandel. Good evening. Geopolitics क्या होता है पता है? सर आई वाज ऋत्विक चंदेल। सर फॉर एग्जांपल सर मतलब इजराइल की सर मतलब जहाँ पे वो इजराइल बहुत रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है सर, मतलब चलो पूरी ठीक, मैं जगह से वो बताता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया अभिनव को है। अभिनव हैज अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया। जी आप कुछ कह रहे थे, कुछ यू आर सेइंग समथिंग कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सर मैं नहीं कह रही थी तो सर, इट वाज सी। नहीं, somebody else was saying. कौन who was saying? सर सिया। सिया क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रही थी कि हमारे स्कूल में इंग्लिश में सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्टार्ट करा दिया। करा दी ना, वो याद दिलाना, इसके बाद करा देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ट्रिकी है, तो कर लेंगे। ठीक है, अनलेस कि किसी एग्जाम आ रहा तब देखेंगे, वील एडजस्ट इट। एक तो तुम दोनों की वॉइस साउंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू मी, जिया एंड सिया। जियोपॉलिटिक्स मींस politics. Firstly, everybody knows what is politics. Politics across geography. Geography of a region. Of that region, either region or continent or global. So as you guys are aware, India has a Quad agreement with 4 countries in the region of IOR. What is the full form of IOR? Anybody? Anyone knows what is IOR? Stand for Indian Ocean Region. Indian Ocean Region. तो ये जो हमारे कंट्री के नीचे का पूरा जो एरिया है ना, ये इंडियन ओशन, दिस इज कॉल्ड IOR, एंड देयर आर 4 countries interested in this: ऑस्ट्रेलिया,
is a part of Quad. India is a part of Quad. Japan is a part of Quad. There are 4 countries. Quad matlab 4 na? 4. And USA. So these 4 countries have created a group called Quad. And the Quad has geopolitical significance or geopolitical influences. So this is what we understand by geopolitics. ठीक है भाई? Understood? हाँ भाई. Arnav, understood? Yes, I understood. Right. Okay, I'm taking a pic of this so that I can rub it off. Right, guys, let me start with 1857. Okay, I just want to ask you guys, what were the reasons 1857 हुआ क्यों था? How many people can talk about this and give me 2 points at least? I के लिखो जिनको 2 point आते कम से कम. At least 2 points. Okay, right. ठीक है. अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को ताकि you guys don't have any problem in remembering the answers. Jia Arnav. Okay, Jia, tell me what were the reasons? Why did this event Sir, happen? there were so many reasons, but the immediate reason was Enfield Riser, and the other reasons were political causes, social and religious, and economic and military causes. Very good. Political बताओगे एक दो? सर पॉलिटिकल कॉजेज में उन लोग जो हम चीफ और लैंडलॉर्ड थे वो खुश नहीं थे उनकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से, जो वो लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसी बनाई थी उनने. ठीक है. मिलिट्री कॉजेज में उनको ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को प्रमोशन और अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, और जो इंडियन सोल्जर्स और बाकी के थे उन लोग को हमेशा लो रखा जाता था कंपैरिजन में. सोशल एंड ठीक है. रिलीजियस में उन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियंस के अगेंस्ट, और उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते थे जो उनका रिलीजन था. और इकोनॉमिक कॉजेज में उनको ज़्यादा रेवेन्यू और जो भी था वो ज़्यादा नहीं दिया जाता था, और ब्रिटिशर्स को उससे ज़्यादा मिलता था. और एंड जो इमीडिएट कॉज एनफील्ड राइफल का था, उसमें जो उनकी ग्रीस कार्ट्रिज थी वो फैट पिग और काऊ की सी थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम बिलीव्स के दोनों अपोजिट थे, इसीलिए वो एक Okay, इमीडिएट दोनों कॉज अपोज बन कर गया. रहे थे. ठीक है. You can add anything to this, Arnav? Yes, sir. Sir, because of the annexation of Awadh in 1856. Okay, annexation of Awadh was a very major region. And why how was the annexation done? What was the reason given? Okay, right. I'll explain. बहुत सारे causes थे, बहुत सारे causes थे. एक एक करके देखते हैं. So let us say what happened in 1757. Something important had happened. क्या हुआ था 1757 में? Anybody remembers? Battle of पानीपत. Plassey. यस सर. बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, क्योंकि वहां जहां लड़ाई हुई थी वहां पे पेड़ जो लगे हुए थे वो प्लास के थे, जिससे कि होली पे रंग बनाया जाता है, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं. ठीक है. सो बैटल ऑफ प्लासी हुई और धीरे धीरे अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब से हम यहाँ के रूलर बनेंगे. अब तक तो हम ट्रेडर थे, अब हम यहाँ के रूलर बन जाएंगे. हम बनेंगे नवाब. नवाब एक्चुअली नवाब होता था इंडियन. These guys thought we will become Nawab, and they started exerting pressure. NABOOB ना हमारी नहीं, बुक ये में लिखा हुआ है. नवाब तो होगा NAA, और ये होगा, हाँ, ये होगा नवाब. नहीं, आई थिंक नवाब या BOOB. डब्ल्यू BAB. थोड़ा बहुत स्पेलिंग तो इधर उधर चलेगी. नवाब. ठीक. 1857 से लेके और
से अराउंड 1773 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था पहली बार, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्होंने बनाया था पहली बार कि इंडिया में रूल ऐसे चलेगा हमारा। ये चलता रहा। 72 में हैदर अली की के साथ लड़ाई हुई, 83 में वो मर गया। तो बेसिकली इन 30-40 इयर्स में लोगों ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। बंगाल से शुरू करा, बंगाल से बिहार आ गए, बिहार आके फिर आगे चलना शुरू किया। किस किस को टैकल करना शुरू किया? मराठास को टैकल किया, निजाम ऑफ हैदराबाद को टैकल किया, और साथ में हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। बड़े सारे बैटल हुए, एंग्लो मराठा वार हुए, हैदराबाद के अंदर वॉर हुआ, थोड़ा छोटा वार हुआ टीपू सुल्तान। अराउंड 50 इयर्स तक ये इसके साथ मिलके इससे लड़ते थे, इससे साथ इससे लड़ते मिलते थे, इसको धोखा देना, उसको धोखा देना। धीरे धीरे इन लोगों ने यही काम करना शुरू कर दिया, एंड दे वर क्वाइट सक्सेसफुल एट। नाउ there was a new concept introduced. It was called subsidiary alliance. Subsidiary alliance was an arrangement थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं so that you guys can see it. An arrangement in which British East India Company, EIC, supplied troops to a king. एक किंग को ट्रूप्स देते थे वो, ट्रूप्स टू ए किंग, बट बदले में लेते क्या थे इन रिटर्न। अच्छा, किस लिए देते? टू ए किंग फॉर प्रोटेक्शन, ऑफ हिज किंगडम। बट इन रिटर्न king paid East India Company for this. King paid salary and other expenditure. But soldiers were employees of ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इससे राजा से ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे ले लेती थी, सैलरी खुद देती थी। तो भैया जो बंदा सैलरी देगा बात तो नौकर उसी की मानेगा, सोल्जर उसी की बात मानेगा। और जब इनका मन करता था किसी स्टेट से निकाल लेते थे ट्रूप्स को, बोलते थे अभी थोड़े दिन के लिए ले रहे हैं, हमें वहां अटैक करना है, वापस आके फिर दे देंगे। सो नॉट मेनी पीपल आर हैप्पी विद दिस, नॉट मेनी किंग्स हैप्पी। दिस इज वन। Second was doctrine of lapse. This was introduced by Dalhousie. लॉर्ड बोलते हैं उसको। डलहौजी के नाम पे एक हिल स्टेशन भी है हिमाचल में। इसका मतलब डॉक्टर लैब्स तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि नो बायोलॉजिकल सन, मतलब किंगडम टेकन ओवर by British East India Company, by East India Company.
उसने बहुत सारे लिए उन्होंने। सबसे पहले सतारा लिया, एक पंजाब में एक स्टेट था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिया। उसके बाद झांसी लिया। झांसी के जो राजा थे उनका लड़का दामोदर था बेटा, वो ही वाज अडॉप्टेड सन, किंग डिड नॉट हैव अ बायोलॉजिकल सन, उसको ले लिया। तो इस तरह से किंग्स एंड नवाब्स वर वेरी अनहैप्पी एंड पीपल इन जनरल वेरी वेरी अनहैप्पी कि ये गलत कर रहे हैं, हमारे राजाओं के साथ अंग्रेज गलत कर रहे हैं। एंड उसके बाद एक बार तो फिर उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी सारी कि अवध के अंदर, अवध का साम्राज्य पता है कौन सा है? लखनऊ के आसपास का साम्राज्य पूरा था। यहाँ के राजा थे वाजिद अली, नवाब थे वहां के वो। It is Awadh, right? अवध एक्चुअली सर AWUD, अवध AWADH। देखो अलग अलग तरह से लिखा जाता है। ADH लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं अवध भी लिखा होता है, अवध ऐसे, अवध। एक अवध जो है उर्दू, अवध इज द पर्शियन एंड उर्दू नेम ऑफ अयोध्या, वहां से आता है। अयोध्या का ही पर्शियन वर्जन है अवध। अवध के राजा थे वाजिद अली शाह, और उनको हटा दिया गया, अंग्रेजों ने हटा दिया। और जबकि उनका बेटा था एक, उनका तो बेटा भी था। अवध के राजा को बोला कि आपको राज चलाना नहीं आता, आपका जो मैनेजमेंट है ठीक नहीं है, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये कह के अटैक कर दिया उनपे, पुअर एडमिन की वजह से अटैक कर दिया एंड उस पर अपना अपना रूल ले लिया, टेक ऑन ओवर बाय ब्रिटिश। ठीक है जी। तो यहां से शुरू करें। सब्सिडरी अलायंस नंबर 1 हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नंबर 2 हो गया, अवध का जो मैटर है ठीक हो गया। नंबर 4, ट्रेड के ऊपर टैक्स, ट्रेड एंड क्राफ्ट, हैवी टैक्स। 5th, क्रिश्चियन कन्वर्जन। इस पे लॉ पास किया 1850 में, ऑल दोज पीपल हु कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, their ancestors can continue to have their property of their parents. Okay. Property can be inherited. 5th, 6th, उसी वक्त पे लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने 2 काम किए। एक तो एक सती प्रथा थी इंडिया के अंदर, वो तो अच्छा काम किया था इन्होंने, सती प्रथा को बंद कर दिया। दयानंद सरस्वती के साथ मिलके सती प्रथा बंद कर दी कॉर्नवालिस ने, और वीडो री मैरिज करवा दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर थे एक बहुत बड़े सोशल वर्कर, उन्होंने कॉर्नवालिस के साथ करके और लॉ पास करा दिया। 2 लॉ पास हो गए। कौन सा वाला? सती एबॉलिश्ड। अब ये चीज तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी चीज थी हमारी सोसाइटी के लिए, लेकिन उस वक्त के लोगों को पसंद नहीं आई। सती एबॉलिश। 7th, विडो रीमैरिज। सती एबॉलिश एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट। तो हमारी सोसाइटी के लोगों को लगने लगा कि यार ये तो साला हमको परेशान ही करे जा रहे। हमारे घर की जो बातें हैं, हमारे घर में जो अगर कोई लेडी है, वुमेन है, हम नहीं चाहते वो शादी करे दोबारा, ये कौन होते हैं हमें इसको करवाने वाले? तो सोशल इनफैक्ट 1857 के बाद, इस रिवोल्ट के बाद ना, अंग्रेजों ने इंडिया की सोसाइटी में कुछ भी चेंज करना बंद कर दिया। जो सोशल रिफॉर्म होने चाहिए था हमारे देश में, दे केम टू ए हॉल्ट, बिल्कुल रुक गए। उधर से ऑर्डर आ गया ब्रिटेन से कि इंडिया की जो सोशल लाइफ है उसमें आप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे। दूसरा ये बोला था कि भाई अभी हम एक्सपेंशन बंद कर देंगे, अब कोई नया राज हम टेक ओवर नहीं करेंगे। ये सब कहानी होगी। तो ब्रॉडली ये तो है अपना जो मेजर बैकग्राउंड इसका। ठीक है, अब हम छोटा छोटा देख लेते हैं। हाँ, इसके अंदर एक जो पॉइंट जो आर्मी वाला दिया था ना वो के पार्शियलिटी एक वर्ड होता है इंग्लिश में, सबको पता होगा इसका, मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूँ इस वर्ड को।
अदरवाइज तो देयर आर अदर वर्ड्स आल्सो। पार्शियलिटी का मतलब सबको पता है ना भाई, कि किसी के साथ भाईबंदी करना, Yes, किसी को sir. ज्यादा फेवर करना, किसी को कम फेवर करना। तो पार्शियलिटी अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स को लेस पे मिलती थी, नो प्रमोशन, पुअर लिविंग कंडीशंस एंड पुअर फूड, पुअर लिविंग स्पेस एंड फूड। तो सोल्जर्स वैसे गुस्से में थे, वो जितनी मर्जी वीरता दिखा लें। उन लोगों को ध्यान होगा, ये जो केसरी मूवी बनी हुई है, केसरी मूवी में जो 12 लोग थे मरे थे, जो सोल्जर जिन्होंने कि 20,000 पठान्स को रोका था, उनको ब्रेवरी अवार्ड तो दिया गया था, लेकिन प्रमोशन नहीं दिया गया। तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था इस बात के लिए। अभी लेट अस लुक एट द इमीडिएट रीजन। Okay, let's look at the immediate region. So what happens is, if you have a bullet, that bullet is explosive. It has explosive. एंड एक्सप्लोसिव को अगर आप ओपन छोड़ दोगे, एयर में, ओपन एयर में डाल दोगे, तो वो खराब हो जाता है। it will react with the oxygen and it will become bad. So a bullet has to be covered in waterproof material, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, और जब हम फायर करना चाहें तो उसको फायर कर सकें। तो ये जो एनफील्ड राइफल, ELD, एनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिज थी, देखो एक बुलेट के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होती है बुलेट जो आगे जाती है, और एक होता है कार्ट्रिज। कार्ट्रिज क्या होता है? जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो गन के अंदर डालते हैं, जो कि फायर करेगा। अब जब ये बर्न करेगा, इधर भी एक्सप्लोजिव होता है, ये तो आगे चला जाता है बुलेट, तो ये यहीं जल के खत्म हो जाता है। इसका काम सिर्फ ये है कि इसको फटना है, और फटने के बाद इसको पावर देनी है, इसको फोर्स देनी है, ताकि आगे चली जाए। तो ये जो कार्ट्रिज पार्ट था एनफील्ड राइफल का, उसको ग्रीस के अंदर बना के रखते थे, ग्रीस। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज ग्रीस। तुम लोग साइकिल चलाते हो, साइकिल की चेन में ग्रीस लगती है। तो कार्ट्रिज के अंदर जो ग्रीस थी, ऐसी कुछ रूमर चली कि इसके अंदर जो ग्रीस है वो एनिमल फैट है। और एनिमल फैट कौन कौन से एनिमल का है? काऊ का और पिग का। काऊ is against the norms of Hindus to even touch cow meat. और इस्लाम में पिग का मीट टच करना हराम है। तो मुस्लिम सोल्जर को इससे गुस्सा आया, और ये सब कहानियां तो चल ही रही थी। आई थिंक डेट मेरे को एग्जैक्टली जो याद है, 17 मार्च का, ये 29 मार्च, नोट्स कहीं रखे थे, मेरे को देखना, मेरे को 1 मिनट लगेगा। काकोरी,
चलो मैं कल बताता हूँ। सो सबसे पहले आई थिंक ये बात है मार्च की, एग्जैक्ट डेट मेरे को अभी याद नहीं आ रही है। मार्च में बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर एक बैरकपुर जगह है, उसका नाम ही बैरकपुर है क्योंकि वहां बैरक बनी हुई है सोल्जर्स की। वहां एक सोल्जर था, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो नाम था मंगल पांडे। सर 29 मार्च। 29 मार्च, बिल्कुल सही। 29 मार्च को मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया और आई थिंक 5 अप्रैल को उसको फांसी चढ़ा दिया गया, हैंग्ड। तो उस जमाने में थोड़ा एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में टाइम लगता था। उसके बाद आई बिलीव इट वाज 5 मई, आई थिंक थोड़ा एक दो डे अप डाउन हो सकता है, मैं चेक कर लूंगा। 1857 को मेरठ के अंदर एक सर 11th 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 में 11th ओके, मेरठ के अंदर जो आर्मी बटालियन थी, वहां के सोल्जर ने रिफ्यूज कर दिया। जब वो फायरिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए लेके गए उनको कि भाई फायरिंग प्रैक्टिस होती है आर्मी में, बार बार आपको फायरिंग की प्रैक्टिस दिया ताकि आपको अच्छे से आपका टारगेटिंग हो लड़ाई के दौरान, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू यूज न्यू कार्ट्रिज। और उस दिन अराउंड आई थिंक अप्रोक्सीमेट 20 के करीब सोल्जर्स को, 20 होगा सकता डाउन हो, अप्रोक्सीमेट 20 सोल्जर्स वर अरेस्टेड। अरेस्ट करके आर्मी में सोल्जर्स को जहां रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं क्वार्टर गार्ड, क्वार्टर गार्ड। और क्वार्टर गार्ड में जेल तो होती है, GUARD, जेल तो होती है, साथ में सारा आर्म्स एम्यूनिशन वहीं रखा जाता है, हथियार और एम्यूनिशन सारे वहीं रखे रहते हैं। तो जो लोग अरेस्टेड थे, इनके जो फ्रेंड्स थे, इनके जो साथ में थे, फेलो सोल्जर्स थे, फेलो सोल्जर्स अटैक एंड फ्री द इंडियन सोल्जर्स। They also kill British officers, kill British officers. And after killing, I think थोड़ा बहुत तो प्लान इनके दिमाग में रहा होगा कि हम ये कर तो रहे, अभी क्या करें, शायद बाद में लगा होगा अब क्या करें। तो इनको समझ में आया कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही बंदा है जिसको कि सारा इंडिया अपना राजा मान सकता है, और वो है बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर वन जो था औरंगजेब का बेटा था, ये जो बहादुर शाह थे, ये बस बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू, ये अपना टाइम पास कर रहे थे दिल्ली में, रेड फोर्ट में रहते थे, शायरी करते थे। 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी इनकी। उस दिन ये आराम कर रहे थे जब ये सोल्जर्स मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे, आई थिंक 13 मई को पहुंचे थे, और उन्होंने बोला कि भाई हमें 13 में सोल्जर्स है दिल्ली। इनको बोला, इनका नाम क्या रखा गया था, रेबल्स बोल सकते हैं। अभी देयर वाज वर्ड यूज्ड फॉर दीस गाइस, रेबल्स बोलते हैं। रेबल्स रीच दिल्ली and want to meet the emperor. एक्चुअली एम्परर तो कहने का था, वो उसके पास कुछ पावर नहीं थी, कुछ भी पावर नहीं थी उसके पास, उसके किले के अलावा उसके पास कोई पावर नहीं थी। तो किंग ने इनिशियली रिफ्यूज कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको बनना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा।
तो राजा का एक वो था, जनरल था, शायद उसका नाम गाजी था। उसने बोला भाई देख सुन, मैं तो भाई मेरी तो हालत है नहीं, इनको जो भी चाहिए मैं मान गया, चलो ठीक है इनका बादशाह बन गया, अब जो भी लड़ाई लुड़ी लड़ी अंग्रेज से तू जा। तो गाजी को भेजा, गाजी ने गाजी को भेजा, गाजी ने दिल्ली में पूरा का पूरा फिर लड़ाई वड़ाई को संभाला। और वहां से शुरुआत हो गई। फिर इन्होंने रेड फोर्ट के एक इलाके में बादशाह रहता था, दूसरे इलाके में अंग्रेज रहते थे, उनके बच्चे रहते थे, लेडीज रहती थी, उनको मारा गया, बच्चे भी मार दिए उसमें, कुछ कुछ विमेन भी मार दी गई। और उसी की वजह से जो रिप्रेशन आया था ब्रिटेन से, सितंबर तक दिल्ली वापस ले लिया उन्होंने, तो वो बहुत ही रूथलेस आया था। ऐसा हुआ कि लोगों को पता नहीं कितने हजारों लोगों को मार दिया, पूरी दिल्ली खाली करा ली गई। और दिल्ली को खाली करा के अंग्रेजों ने जमुना के पास एक ग्राउंड था, बोला यहाँ से पड़े रहो, कोई अंदर नहीं आएगा शहर के अंदर, पूरा सिटी खाली करा लिया। तो ये शो होता रहा और धीरे धीरे बात चारों तरफ फैली। तो दिल्ली में गाजी ने लड़ाई लड़ी। कानपुर में एक मराठा रूलर थे जिनको कि महाराष्ट्र से निकाल दिया था अंग्रेजों ने, और उनका नाम था नाना साहेब। उनको पेंशन बंद कर दी थी, उनके फादर को मिलती थी। और नाना साहेब के जो जनरल थे उनका नाम था तांत्या टोपे। तांत्या टोपे। बाद में ऐसा हुआ कि जब नाना साहब हार गए लड़ाई में, तो नाना साहब तो भाग के नेपाल चले गए। तांत्या टोपे को उन लोगों ने फांसी की सजा दे दी, पेड़ से लटका के फांसी दे दी। लखनऊ के अंदर कौन कौन था? लखनऊ के अंदर थी बेगम हजरत महल। कौन सी वाली? वो जो राजा साहब थे वाजिद अली शाह, उनकी वाइफ। वो बहुत काबिल लेडी थी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल इनका नाम था। ये रूल वहां के जो रेबल थे उन्होंने कहा कि अब आप रानी हो यहाँ की, और वहां पे उसको बना दिया। उसके बाद इनका जो बेटा था उसका नाम था ब्रिजेश कादिर। ब्रिजेश कादिर जो कि नवाब का बेटा था वाजिद अली शाह का। इसके अलावा झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला हुआ था, क्योंकि उनसे महल छीन लिया था उनका। वो किराए का मकान लेके रह रही थी, और वो बोला था कि बादशाह का बेटा नहीं है, राजा का बेटा नहीं अपना, तो राजा का बेटा दामोदर था उसका नाम, उसको हम राजा नहीं मानते। तो रानी को महल से निकाल दिया। बाद में रानी लड़ी और मारी गई लड़ाई में। और दामोदर को फिर, दामोदर बच्चे थे तब, दामोदर को फिर बाद में पेंशन दी गई थोड़ी बहुत। वो बहुत गरीब हालत में मरे। तो झांसी लक्ष्मीबाई की बहुत वीर लेडी थी। ऐसा कहते हैं लड़ाई जो लड़ी थी दोनों हाथों तलवार चलाती थी। ओके। उसके बाद काफी और लोग थे। फैजाबाद में एक था अहमदुल्ला शाह, बख्त खान था बरेली में, बिहार में कुंवर सिंह थे। दो लोगों का नाम बता देता हूँ। बरेली बख्त खान था इनका नाम, और बिहार में जो लड़ाई संभाली उनका नाम था राजा कुंवर सिंह। ये लड़ाइयां चलती रही। सितंबर में दिल्ली ले लिया, जून जुलाई तक आते आते झांसी ले लिया, लखनऊ ले लिया अंग्रेजों ने। और ये लेने के बाद अंग्रेजों ने पहली बार तो बहुत रूथलेस सप्रेशन किया, मारा गया, लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया। गलती थी नहीं थी सब कुछ लोगों का फायदा हुआ। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे, फाउंडर, उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। उस बंदे ने अंग्रेजों की जान बचाई थी इस टाइम पे। बाद में अंग्रेजों ने उसको बहुत रेस्पेक्ट दिया, उसको सर का तगमा दिया। और सर सैयद अहमद खां ही वो बंदा था जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने की जो कहानी है वो सर सैयद अहमद खां के टाइम से शुरू हुई थी। और भी बहुत लोगों ने हेल्प की थी अंग्रेजों की, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तानियों से वो गुस्सा थे, और उन्होंने इसलिए इनडिस्क्रिमिनेट लोगों को मारा, फांसी चढ़ा दिया, कैनन के सामने बांध के कैनन को फायर कर दिया। तो बंदा तो लटका हुआ है, लेकिन बंदे का बीच का पूरा वो चला गया, लोग मर जाते थे साथ में। एंड देन as a result of this, since so many people had died,
After the revolt, the administration of India was taken over from the company, and it was now overseen by the Parliament of Britain, and they appointed two people. One was Secretary of India, who used to sit in. He was an MP, Member of Parliament of British. He had an office in England, and another person was Governor General, who used to sit in India. And all the four governors of Calcutta, Chennai, Calcutta, Madras, चेन्नई नहीं बोलते, मद्रास, मुंबई और बॉम्बे, बॉम्बे बोलते, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस, आई थिंक यूपी का जो था, वो सारे उसको रिपोर्ट करते थे. वो उनका ऊपर होता था, गवर्नर जनरल. इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद बाकी लोग. अच्छा, ये हो गया. दूसरा, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि अब आज के बाद हम किसी भी किंगडम को हड़पेंगे नहीं, जितना हमने कर लेना तो ले लिया, अब हम किसी पर हड़पेंगे. क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वन ऑफ द रीजन वाज दिस. देन ही दे सेड कि हम इंडिया की जो सोसाइटी है, रिलीजियस चीजें हैं, उसमें ज्यादा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. और ब्रिटिश जो पहले जो रेशो था ब्रिटिश सोल्जर्स का और इंडियन सोल्जर्स का, वो कुछ ऐसा था, 100 सोल्जर्स के ऊपर क्या, आई थिंक 10-15 सोल्जर्स थे. अब 40 सोल्जर्स ब्रिटिश, 100 सोल्जर्स इंडिया, इस तरह का होता है. उनको इंडियंस को थोड़ा बहुत प्रमोशन दिया, उनकी तनख्वाह बढ़ाई. आर्टिलरी एक होता है आर्मी के अंदर, जिसमें तोप होती है, गन्स होती है बड़ी बड़ी, गोला बारूद वाली. वहां से इंडियंस को निकाल दिया. इंडियंस को बहुत लेट तक आर्टिलरी में अलाउ नहीं किया, क्योंकि आर्टिलरी पावर होती है बहुत ज्यादा. एक गन से आप हजारों लोगों को मार सकते हो. गन का मतलब वो पिस्टल वाली गन नहीं होती, गन का मतलब तोप होता है, कैनन. तो ये सब चेंजेस हुए. तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही हमें देखना है, क्योंकि मैं जानबूझ के इसलिए प्रीव्यू तुम्हें दिया है, ताकि अभी प्रीव्यू समझ में आ गया तो अभी चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. ओके, बिफोर यू स्टार्ट विद द नोट्स, यू गाइस वांट टू आस्क मी एनीथिंग? हाँ जी, अब तक की जो बेसिक बैकग्राउंड समझ में आया? ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक, अर्णव, Yes, sir. Yes, sir, understood. Basic background understood. Arshia, Yes, sir. Understood. Jia, Yes, sir, understood. शिव चौधरी, Yes, sir. प्रभुगुण, क्लियर भाई? Yes, sir. ओके, ऋत्विक तावरी, श्रिका, कंफर्म करो, क्लियर? Understood, sir. ओके, श्रिका, so far picture clear? Yes, sir. Clear. Tia, Yes, sir. ओके. तस्मिया, वंश, कंफर्म करो भैया. Yes, sir. Yes, Okay. sir. अभिनव, आपको पिक्चर क्लियर है अब तक की मोटा मोटा? यस सर. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. आज वंश से शुरू कर रहा हूँ मैं रीडिंग का. वंश, बी रेडी प्लीज, आई एम जस्ट शेयरिंग द नोट्स. राइट वंश, आई एम शेयरिंग. ओके, पहली लाइन डल, थोड़ी सी वैसे, बाकी ठीक है. ओके, हमने देखा था पिछले चैप्टर में भी कि ट्राइबल्स का भी हक मार लिया, फार्मर्स भी परेशान थे, सब परेशान थे. ऑल राइट, प्लीज गो अहेड. पॉइंट नंबर, व्हेन पीपल रेबल 1857 and after. Okay, policies and the people. Policies and the people. The policies of the East Indian Company affected the life of king, queens, Peasants, landlords, peasants, tribals. landlords, tribals, and soldiers in many ways. Nawabs lost their power in mid 18th century. Nawabs and Rajas had gradually lost their authority and honor. Their freedom reduced, armies disbanded, and their revenue and territories taken away. Some ruling families like the Peshwa Nana Sahib नाना साहेब मराठा, ये मराठा राजा के बेटे थे. हाँ. and Rani Lakshmi Bai tried to negotiate between the company to protect their interests, but were unsuccessful. Okay. Awadh was first imposed with a subsidiary alliance in 1801.
and then taken over by the company in 1856 on the अवध को जिस pretext. तरह, एक मिनट, अवध को जिस तरह से इन्होंने क्या क्या कैप्चर किया था, कोई रीजन नहीं, राजा को बोला तुम ठीक से राज नहीं चला रहे हो, इस साइड हो जाओ, हम वी विल टेक ओवर। तो इससे इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा। उनको लगा कि यार कल को कोई भी राजा सेफ नहीं है। अब तक तो सिर्फ ये था कि किसी का बेटा नहीं है, अब तो कोई रीजन की जरूरत ही नहीं है, ब्रिटिशर किसी को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सो दैट वाज टेकन वेरी बैडली, पीपल डिडंट लाइक इट एट ऑल। ओके, कंटिन्यू करेंगे आप, या प्लीज कंटिन्यू। प्लानिंग टू एंड, Planning to end the Mughal dynasty, the company removed the name of the Mughal king from the coins minted by it in 1849. Governor General Dalhousie डलहौजी, announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the current king, his family would be shifted out of the Red Fort. डलहौजी was became the viceroy in 1848 and he remained till 56. Okay. In Continue. 1856, Governor General Lord Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, his The descendants descendants, will be his descendants will be just called princes. ओके। तो उसने दो तीन चीजें हो गई। पहली बात, 1856 के अंदर जो अवध को कैप्चर किया, 1849 में मुगल एम्परर की फोटो हटा दी कॉइन से, और ये बोल दिया कि ही इज द लास्ट किंग, लास्ट एम्परर। आफ्टर दिस नोबडी विल बी कॉल्ड एम्परर, हिज किड्स विल बी प्रिंसेस एंड हिज फैमिली आफ्टर हिज डेथ विल बी मूव्ड आउट ऑफ रेड फोर्ट, व्हिच वाज अ ग्रेट सेटबैक टू द ऑनर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ऐसे कहते हैं डलहौजी की वजह से गदर, काफी गदर हुआ इंडिया में। हालांकि एडवांस भी उसने काफी कराया। 1853 में इंडिया में ट्रेन चली थी, तो डलहौजी के टाइम चली थी। 1854 में टेलीग्राफ आया था, फर्स्ट टाइम इंडिया में, कलकत्ता से लेकर आगरा तक टेलीग्राफ की लाइन बिछी थी, वो भी उसके टाइम पे आया था। बट the people in our country did not like his policy. Unfortunately, he was not there during the revolt. He had moved out a year before that, and Lord Canning had come in his place. Now, let us see what was the impression of peasants and sepoys. Who is Tasmia? Tasmia, you go ahead with this further. Okay, I am sharing Tasmia. Go ahead. Peasants and sepoys. अच्छा, सिपाही वर्ड जो है उर्दू के वर्ड्स, ये उर्दू के वर्ड सिपाही से आता है। सिपाही एक उर्दू का वर्ड है। हिंदी में तो सैनिक बोलते हैं, पर उर्दू में बोलते हैं सिपाही। इन लोगों से सिपाही नहीं बोला जाता, तो ये लोग उसको सिपॉय बोलते थे, सिपॉय। Yeah, go ahead, please. The peasants and the sepoys. Many peasants and zamindars in rural areas were unable to pay back loans taken from the moneylenders to pay the high taxes. So what is this? लेवीड है क्या? एक मिनट होल्ड करना। हाई टैक्सेस, लेवी का मतलब होता है लगाना। Levied by the company, thus they gradually lost their lands. Sepoys reacted to what was happening in rural areas, as many of them were peasants and had families living there. Thus, this discontent dissatisfaction. spread among the sepoys also. The Indian sepoys. The Indian sepoys in the service of the company's army were unhappy about their pay, allowance, and conditions of service, particularly when new rules of the company violated their religious sensibilities and beliefs. ओके, एक पॉइंट और मैं यहाँ ऐड कर दूं। इंडियन सोसाइटी के अंदर ये थॉट था कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ये थॉट था कि क्रॉसिंग ऑफ सी इज इमोरल। सी पार करके नहीं जाना चाहिए, ये अगेंस्ट द रिलीजन है। एंड just before 1857, I don't remember the exact year, Britishers announced that Indian soldiers will fight not only in India or Indian borders, wherever they're ordered to go.
whether they have to go to Africa, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, अफ्रीका में थी, साउथ अमेरिका में थी, तो वो कहते थे भाई जहाँ भी तुम्हें जाने के लिए बोलेंगे तो जाना पड़ेगा. सो दैट केम एज ए शॉक टू इंडियन सोल्जर. कहते यार ये तो मेरे धर्म के खिलाफ है कि मैं सी को क्रॉस करके जाऊं, सी क्रॉस करना तो अलाउड नहीं है. तो दैट वाज अनदर रीजन. ओके, तस्मीया प्लीज कंटिन्यू करें. Okay, 1924, 1824, yeah. Tasmia. The Indian sepoys in the service of the company's army were unhappy about their pay allowance and conditions of service, particularly when new rules of the company violated their religious sensibilities and beliefs. Many people of the time believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste thus, बोलते हैं when धर्म in भ्रष्ट हो जाएगा उनका. 1824 the sepoys were told to travel to Burma by the sea route to fight on behalf of the company, there they refused to follow the Follow the order. follow the orders. Such people were. Okay, there seems to be some background issue. Sia, can you take on from here? Point number 11. Such people were punished, Okay. and the company laid down overseas service as a condition for Yes. any recruit. Okay. Even today, when I took my oath बोलते हैं, so when I took my oath as an officer of Indian Army, तो oath के अंदर लिखा होता है कि wherever I am ordered to go by sea, air or by sea, air or land, I will go there. ये अभी भी इंडियन सोल्जर्स और इंडियन ऑफिसर्स की ओथ का एक पार्ट है. ये तभी इंट्रोड्यूस किया गया था. या प्लीज कंटिन्यू. रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स. ये थोड़ा सा कट गया है आई थिंक, बट प्रॉब्ली वी कैन मैनेज. या सिया. Yes, sir. Responses to reforms. After the British established political power in India, they passed many laws to reform the Indian society. Laws were passed to stop the to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. Allowed Christian missionaries to function freely in the company's domain, made conversion to Christianity easier by allowing the Indians who had converted to Christianity to become to continue inheriting the property of their ancestors by introducing a new law in 1850. Thus, the population started feeling that their religion, their social customs, and their traditional way of life were being destroyed, although some social reformers wanted to change existing social practices. ओके. एक्चुअली देखा जाए तो सती प्रथा का जो विरोध कराया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था. Am I getting it wrong? Yeah, राजा राम मोहन राय. I hope I have not written it wrong somewhere. Okay, तो सती का जो विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने किया. राजा वो बंगाल के बड़े अच्छे फैमिली के बंदे थे, राजा राम मोहन रॉय. ये थे सती के खिलाफ. और ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर अभी भी इनका बड़ा नाम है. ही गॉट द विडो रीमैरिज. कराया इन लोगों ने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने रूल चेंज करके कानून बना दिया, उसको लॉ बना दिया, तो लोगों को उससे बड़ा गुस्सा आया. ओके. सिया, kindly continue from here. सिया कह रहा हूं, सॉरी, श्रीखा. A mutiny becomes a popular rebellion. A mutiny becomes a popular rebellion, a situation in which a large number of people begin to believe that they had a common enemy, that And must must rise up against
the enemy at the same time developed in the northern parts of India in 1857. Thus, the people had to organize and Communicate. communicate, take initiative, and display confidence to turn the situation around. Yeah. Continue, please. The East India Company faced a massive mutiny from its Mutiny, sepoys massive mutiny, मतलब started massive बहुत बड़ी mutiny. its mutiny from its sepoys that started in May 1857 from Meerut. Since a large number of people from different sections of India society also rose up in rebellion, it threatened the company's presence in India, being regarded as the biggest armed resistance to colonialism in 18th century anywhere in the world. Okay. So guys, रेबेलियन उससे पहले भी हुए थे, हमने ट्राइबल्स के रेबेलियन देखे थे, सब रेबेलियन देखे थे, लेकिन ये रेबेलियन एक ऐसा था जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ. इतने लार्ज पे तो नहीं हुआ कि जितना होना चाहिए था. बहुत सारे नवाब ने पार्टिसिपेट नहीं किया, राजाओं ने बोला हम क्या, हमें तो नहीं चाहिए, ये जनता के लोग आ जाएंगे, हम तो सेफ है. लैंडलॉर्ड्स ने नहीं किया, बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन ने नहीं किया. कई इंडिया के, जैसे सिंधिया फैमिली है, जो सिंधिया परिवार है राजाओं का, दे फॉट विद ब्रिटिशर्स के साथ थे वो, तो वो उन्होंने अंग्रेजों अपना इंडिया के खिलाफ लड़े वो लोग. ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इंडिया के इस मुल्कनी को रोकने की कोशिश की. थोड़ा कल इसके बारे में बताऊंगा एंड टुमारो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके, बिफोर वी से वी क्लोज फॉर द डे, एनी डाउट्स? वंश, No, तस्मिया, सिया, श्रिका, ऋत्विक, No, sir. anything bothering No, you, sir, no troubling you? Prabhugan, Jia, No, sir, no Chaudhary, doubt. Arshia? No, sir, no doubt. No, sir, no. Arnav, No doubt. अभिनव, ऋत्विक, चंदेल. चलो, तो ठीक है दोस्तों, नोट्स बना लेना प्लीज अपने नोट उसमें और वीडियो में पोस्ट करूंगा, वीडियो देख लेना कल इसको. तो और भी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं लेट्स शेयर विद यू. ओके, चलो, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन. Thank you, sir. Bye, sir. Good Bye, night. sir. Good night. गुड नाइट. Bye, sir. Bye, sir.